when last electron enters in the s orbital of valence shell के अगर s orbital में अगर electron entry करता है, we call those elements as what? s block, right? बराबर है? If last electron enters in p orbital of valence shell, so valence shell in p block element, the valence shell contain electrons in s orbital and electrons in p orbital. So s orbital always contain 2 electrons, and after filling s orbital of valence shell, the electron will enter in p orbital. So in p there can be 1 electron, like in group 13, 2 electrons in group 14, 3 electrons in group 15, 4 electrons in group 16, 5 electrons in group 17 and 6 electrons in group 18 except helium. Helium छोड़ के बाकी सब में. तो ns2 np 1 to 6, that is p block element, right? बस हम just revising. ये सबको याद है आपको? Yes, no, जो भी है बोलो बिंदास. Yes. Okay, screen share नहीं किया शायद मैंने अभी तक, नहीं किया ना? हाँ नहीं. Sorry, that's what. Okay, actually I thought that I explained. Oh, sorry. So see, you can see now. हो गया ना screen share या नहीं अभी भी? हो गया ना? हाँ. So discuss S block elements here, in which last electron enters in the लिखा हमने definition S block. All those elements in which last electron enters in the s orbital of valence shell. Plus last electron is also called as the differentiating electron, right? Remember this name. You may ask what is differentiating electron means. So all the elements in which differentiating electron enters in s orbital of valence shell are called as the s block element, and their outer electronic configuration is ns1 or ns2. So in general ns1 or 2, right? Okay, similarly p block element, all those elements in which last electron enters in p orbital of valence shell, we call those elements as what? P block element, right? So the configuration is, in any p block element, the valence shell contain 2 electron in s subshell, 2 electron s orbital में रहेंगे और बाद में p में electron entry करेंगे. तो if you talk about group 13, ns2 np1, group 14 ns2 np2, group 15 ns2 np3, group 16 ns2 np4, group 17 ns2 np5, ns2 np6 except helium, right? Okay. So then we discuss d block elements. तो d block element थोड़ा केस अलग है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. लेट अस टॉक अबाउट द, चलो हम लोग एक बार वापस देखते हैं डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. सबको याद है डी ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? बस आप मुझे रिप्लाई करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे समझेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. Yes, sir. Okay. So first shell, second shell, third shell and fourth shell. So if I ask you simple question, how many shells in scandium? आपका आंसर क्या होगा? How many shells in scandium? स्कैंडियम में कितना शेल्स है? स्कैंडियम के पास कितना शेल्स है बताओ मुझे. So we have put scandium in which period? Fourth. Why it is in fourth period? Because it has total 4 shells, right? 4 shells. Okay. So the last shell is called as, anybody still remember last shell is called as the Valence shell. valence shell. Very good. Second last shell is called as the penultimate shell, right? Penultimate shell, valence shell, penultimate shell, and so on. Okay. So class, when you talk about scandium has atomic number 21, right? Yes. Scandium is 21. So when you go on filling the electrons in scandium, let me do it here only. So if you fill electron in scandium, atomic number 21. So 21 electrons we are going to fill in scandium. So lowest energy orbital 1s, right? I remember 1s2, 2s2. Yes, आपको आता है ना configuration सब लोग को? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, good. 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. very good. 4s2, 3d, 3d1. very good. So when you fill electron in scandium, so 21 electrons we have, and when we start filling electrons, so let us fill the electrons in different shells. So 1s2, first shell में, right? This first shell, second shell, third shell. 2s2, 2p6, right? 3s2, 3p6, 4s2. Class, we have filled how many electrons now? 20. Check karo. Are there 20?
अपने 20 इलेक्ट्रॉन भर के हो गए अपने, चेक करो। सी 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 18 18 plus 6 20 18 sorry plus 6 plus 2 6 सॉरी वापस करते हैं। 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18 18 plus 2 20 बराबर 20 इलेक्ट्रॉन भर के हो गए। तो क्लास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देयर आर इन स्कैंडियम 21, आउट ऑफ व्हिच 20 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एनीबॉडी क्या बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को जो बचा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट वी कॉल दैट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बचा हुआ एक भरना बाकी है। Valence electron. नो बच्चा, नो, दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? Last electron. या फिर क्या बोलते हैं इसको? Differentiating electron. वो बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? लेट मी एक्सप्लेन। सो सी 1s2, देखो आप यहाँ पे देखो 1s2 हो गया, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 प्लस अभी आपका एक इलेक्ट्रॉन। डू यू एग्री दैट यही इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है? Yes. कहाँ पे भर रहे हो बताओ मुझे आप? 3D में ना? क्या इलेक्ट्रॉन 3D में भर रहे हो आप? क्या स्कैंडियम का लास्ट शेल थर्ड है? नहीं ना। ये कौन सा शेल है? थर्ड शेल। थर्ड शेल तो पेनाल्टीमेट शेल है, राइट? Yes. हाँ, तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा था वो कहाँ पे गया? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? Penultimate shell. पेनाल्टीमेट शेल यहाँ पे गया, बराबर? एग्री करते आप? हाँ, तो प्लस तो उसको डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो डी में गया, राइट? Yes. कौन से डी में गया? पेनाल्टीमेट शेल की डी में गया, राइट? तो ऐसे सब एलिमेंट, जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ तक, ये देखो जो पूरा ब्लू से मैंने शेडिंग किया ना, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा शेडिंग ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, ये पूरा जो शेडिंग हमको दिख रहा है, ये सब एलिमेंट्स में क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करता है? पेनाल्टीमेट शेल Penultimate shell. के कौन से ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में। पेनाल्टीमेट शेल में भी कहाँ पे है? डी ऑर्बिटल में, राइट? तो वी कॉल दोस एलिमेंट्स एज व्हाट? D block D block elements. elements. So class, if I ask you define D block elements, plus your chapter next year 12th standard, D block elements, D and A block elements. Name of the chapter itself is D block elements, right? That's why I'm taking this into detail. So class, if I ask you define D block element, answer will be all those elements, All right? those elements in this last electron enters in D orbital of the penultimate shell. Very good. All those elements in which last electron enters in Brahma D orbital of penultimate shell, right? Yes. You can simply write this like this, that is n minus 1 d orbital. What do you mean by n minus 1 d orbital? See, d orbital of n minus 1 मतलब penultimate shell, right? तो कौन सा गाड़ी मध्ये? So n minus 1 d orbital, the d orbital of penultimate shell are called as the d block element. एक मिनट बच्चों, give me 1 minute. Okay, is it clear बच्चों लोग? All called as the d block elements. D okay, sorry students, okay, समझा आपको ये? Sorry for the interruption. Yes, sir. क्लास अभी लास्ट में होता है ए ब्लॉक एलिमेंट। क्लास ए ब्लॉक एलिमेंट विल नॉट गो इन दैट डिटेल, मतलब आई विल एक्सप्लेन ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बट ए ब्लॉक एलिमेंट अगेन नेक्स्ट ईयर यू वांट टू लर्न इन डिटेल ए ब्लॉक एलिमेंट। सो क्लास ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर शोन सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड few questions which are for MCQs important. So few elements we show separately at the bottom of the periodic table. Just a second. We show at the bottom of the periodic table separately, should we show, right? You might have seen, right? 10 में देखा था आपने? Yes. So separately, हाँ, at the bottom of the periodic table. So class here I'll F block F elements. block elements, good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay,
So class, these are called the A block elements. So any guesses A block क्यों बोलना चाहिए उनको? थोड़ा सा idea why we call A block elements? कौन डिसाइड करता है ब्लॉक बच्चे लोग? Number of shell. नो नो नो, हमने कितना देखा? एस ब्लॉक देखा, पी ब्लॉक देखा, आपने यहाँ पे देख के बोल सकते हो। ए ब्लॉक क्यों बोलेंगे इनको में हम लोग? Because क्योंकि the उनका electron लास्ट enters इलेक्ट्रॉन, in the F विच orbital. इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, Last electron. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच ऑर्बिटल? एफ ऑर्बिटल। ओके, और भी कौन से शेल में एंट्री करता है वो? प्री पेनाल्टिमेट शेल। कहाँ पे एंट्री करता है? प्री पेनाल्टिमेट। आई एक्सप्लेन दैट। सपोज आई टॉक अबाउट हियर, सी द एलिमेंट्स हियर। Hey, just I'm writing. Okay. So if you talk about this element, cerium. So actually the position of the cerium is actually, see class, this is question for JEE or NEET exam. Cerium actually है कहाँ पे? तो class cerium का actual position है, it is present in the third group and sixth period. तो actually is present over here. Cerium is present over here. मैं इसको highlight करता हूँ, just a second. Can you see this position जहाँ पे lanthanum दिख रहा है आपको? तो इस पूरे Yes. ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है बताओ मुझे? 14 एलिमेंट्स है। कहाँ से लेके? एक्चुअली 15 लैंथनम पकड़ के कितने एलिमेंट्स है? सीरियम से लेके, देखो यू कैन सी हियर सीरियम, दिस वन, ये सब एलिमेंट कहाँ पे? उस अकेले बॉक्स में है। तो क्लास, इज इट कन्वीनियंट टू ड्रॉ ऑल एलिमेंट्स ओनली इन वन बॉक्स? नहीं ना? No. तो व्हाट, तो इट इज नॉट convenient to show all elements in one single box. So what we do, we show them separately. So actually these elements belongs to this position, but we show them separately over here, right? And these elements are called as the lanthanoids. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Lanthanoids. Lanthanoid. Because they comes after lanthanum, right? They comes after element lanthanum. They are called lanthanoids. Okay, lanthanoids. Okay, and these are A block elements. So class, if I ask you, cerium belongs to this element. I'll highlight this element. This element belongs to which period? Tell me. कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं एलिमेंट सीरियम? 6. तो उसके पास कितना शेल्स होगा? 6. वेरी गुड. तो इट हैज 6 शेल्स, राइट? So the element has 6 shells. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So last shell will be valence shell, right? Yes. Second shell will be penultimate shell, right? And fourth shell will be what? Pre-penultimate shell. Pre-penultimate shell. So class, cerium has total 58 electrons. कितने electrons cerium के पास है? 58. You go on filling electron. 1s2, 2s2, 2p6, whatever. You go on filling electron, and you will find जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहाँ पे एंट्री करेगा? वो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा बच्चों लोग यहाँ पे। प्लस कहाँ पे एंट्री किया उसने, बताओ मुझे? Pre-penultimate shell. Pre-penultimate shell. And which orbital it will enter in? F orbital. कहाँ पे एंट्री करेगा? F orbital में. So all those elements, all those elements in which last electron enters in what? F orbital of what? Which shell? Pre-penultimate shell are called as what? F block element. क्या बोलते हैं हम लोग इनको? F F block. block element. तो क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे तो 50 से इलेक्ट्रॉन भर के हो जाएंगे, जब 58 इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट? वो कहाँ पे एंट्री करेगा? यहाँ पे F में एंट्री करेगा। कहाँ पे? प्री पेनाल्टी शेल के F में एंट्री करेगा। तो क्लास सेम की बात करेंगे तो उसके F में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके F में, उसके बाजू वाले में 2 होंगे। क्लास व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ F ऑर्बिटल? एनीबॉडी? कैपेसिटी ऑफ F ऑर्बिटल इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बराबर ना? Yes. तो इसके सीरियम के इसमें F में 1, ब्रोमियम के F में 2, Nd में 3, Pm में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, right? Which orbital is progressively filled? F orbital. Okay, are you clear? Yes. Okay, similarly there are more 14 elements. Okay, मैंने एक गलती किया यहाँ पे, एक्टिनियम लिख दिया ना, जस्ट मतलब
Class, now we'll start with the real periodic properties after this. You don't have to remember name of these elements this year. Next year will require. Okay, so these are the elements. So class, elements from thorium to lawrencium. Okay, class. Now these elements actually belongs to this part of the periodic table. I'll show here. These elements belongs to. Just a second. Let me check the color. Take the different color. Okay, this element belongs to here. Class, can you see this white wala box? Everyone? Yes. Okay. So this element actually belong to this part. वहाँ पे है वो. So class, which period and which group? Which period and which group? 7th period. And third group. देखो third group में ना ये बॉक्स कौन से ग्रुप का बॉक्स है? देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ये कौन सा ग्रुप? देखो थर्ड ग्रुप. राइट, देखो मैं हाईलाइट वापस करूँ एक बार. ये देखो ब्लू से कर रहा हूँ. ये थर्ड ग्रुप दिख रहा है आपको? थर्ड ग्रुप एंड विच पीरियड? 7th पीरियड. राइट, तो एक ही बॉक्स में एलिमेंट Yes. रखना क्या होगा? इट विल नॉट कन्वीनियंट. व्हाट वी डू, वी शो देम सेपरेटली. So all these elements after actinium which comes in periodic table, okay, after actinium हमारे पास है actinoids. क्या बोलते हैं उसको? Actinoids. ओके क्लास, उनमें भी सेम ही होता है. डिफरेंस क्या है इसमें? सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वैलेंस कौन सा है? 7th. राइट, एक्टिनॉइड्स का देखो. एक्टिनॉइड्स का कितना? देखो ये सब एलिमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. जितने भी एलिमेंट ड्रॉ किए, लेट मी शेयर दिस ऑल एलिमेंट. थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ऑल दिस एलिमेंट्स. प्लस ये एलिमेंट कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? दे आर इन ऑल 7th. 7. तो देयर आर हाउ मेनी शेल्स? 7. 7 शेल्स. राइट, तो 7 शेल विल बी, आप बोलोगे 7 शेल विल बी वैलेंस शेल. राइट, Yes. okay. 6 shell will be penultimate shell, right? Penultimate shell. And 5th shell will be Pre-penultimate pre-penultimate shell. shell. So if you take any element from actinoid, what will happen if you go on filling electron? जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में बचेगा वो कहाँ पे एंट्री करेगा? प्री पेनाल्टिमेट शेल के f ऑर्बिटल में. इसका प्री पेनाल्टिमेट शेल कौन सा है? 5th शेल है. राइट, तो 5th शेल के f ऑर्बिटल में सब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे. एग्री? So all those elements are called as which elements? F block elements. क्या बोलते हैं उनको? F block elements. So F block we have two series, lanthanoid series and actinoid series, right? Yes. Okay, यहाँ तक clear सब लोग को? हाँ. So class, these things you will come to know when you read different chapter. Class, first chapter you have to learn in 11th standard is elements of group 1 and 2. तो वहाँ पे आपको S block आ जाएगा. ठीक है? Next chapter you want to learn in 11th standard group elements of group 13, 14, 15. वहाँ पे कौन सा block आ जाएगा बच्चों? आपको T block आ जाएगा. Elements of group 13, 14, 15. मैं highlight करो यहाँ पे, आपको यह समझ में आ रहा है? Elements of group 13, 14 and 15. आपको कौन सा block आएगा? P block element. चैप्टर का नाम रहेगा. Okay, class. Next year again remaining P block will be there. Group number 16, 17, 18 in 12th standard, right? P block. Okay. Next year you also have one more chapter. D block elements. ये सब 40 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. All 14 एलिमेंट. D block elements and F block element. वे आपको एक अलग चैप्टर आएगा. तो हर एक चैप्टर आपको उसका डिटेलिंग पता चलेगा. क्लियर है सब लोग को? Yes, sir. Okay. तो क्लास इतना पूरा लेक्चर अपना 1-2 घंटा जो भी गया, हमने क्या सीखा कि कोई भी एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करता है s ऑर्बिटल में वैलेंस शेल के, तो क्या बोलेंगे उनको हम लोग? s ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट, Yes. कोई भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में एंट्री करेगा तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? P block element. p ब्लॉक एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट शेल के d में एंट्री करेगा, वैलेंस शेल के d में कभी करता ही नहीं, याद रखो ये. पेनाल्टीमेट शेल के d में एंट्री करेगा तो क्या बोलेंगे उनको हम लोग? P block p ब्लॉक element. एलिमेंट्स. और कोई भी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर प्री पेनाल्टीमेट शेल मतलब सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट शेल के कहाँ पे एंट्री करेगा? f ऑर्बिटल में, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? F block f ब्लॉक element. एलिमेंट. तो f ब्लॉक के आपके पास कितने सीरीज है बोलो? 4 सीरीज है. सॉरी 2 सीरीज है. कौन सा? लैंथोइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज. Actinoid series. क्लास एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट इज पोजीशन ऑफ लैंथोइड इन पीरियोडिक टेबल? एक्चुअल पोजीशन है. वी शो देम सेपरेटली फॉर आवर कन्वीनियंस, बट व्हाट इज रियल पोजीशन ऑफ f ब्लॉक लैंथोइड इन पीरियोडिक टेबल? 6th period and 3rd group. वेरी गुड. एंड एक्टिनॉइड्स? 7th period and 3rd group. Class, this is very common question in any MCQ booklet of this periodic table chapter. आपको याद होना चाहिए लैंथोइड का एक्टिनॉइड का पोजीशन. ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग.
Now we'll start with the periodic properties. हम लोग देखेंगे periodic properties now. Now what do you mean by periodic properties? Your periodicity. So class, if I show you, if you see lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, class इन सब में कुछ कॉमन है, इन सब में कुछ कॉमन है. So क्लास पहली बात, क्या सबके सब एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है? देखो मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांशियम, आर दे प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप? Yes. Okay, so all are present in same group. Good. All are present in same group, right? Lithium से लेके francium, so they are present in same group. तो class, what is speciality of elements present in the same group? वो same group में रहेंगे तो उससे क्या होता है? Anybody would like to guess? They have same properties. नहीं नहीं, हाँ same properties बाद में आएगा. उससे पहले उनके क्या क्या से आपको तो दिख रहा है? सबसे पहले तो they all have similar electronic configuration, right? Similar outer configuration, agree? Yes. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, फिर भी एक बार. सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक, क्लास इसी लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लास इफ आई आस्क यू लिथियम, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन लिथियम? एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज व्हाट? 3, राइट? Yes. 1s2 2s2. 2s1, 3 है ना? हाँ, yes. 1s2 2s1. Just a minute, it is not working properly. 1s2 2s1. ओके, तो लिथियम की जगह सोडियम है, राइट? एटॉमिक नंबर 11. Sir, 1s1 नहीं लिख सकते ना? नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं, बिकॉज 1s से 2s का एनर्जी क्या है? ज्यादा है. Yes. तो जब तक 1s पूरा नहीं भरता हम लोग 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं. व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ s? 2 इलेक्ट्रॉन. Yes. तो जब तक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, Yes, sir. 1s to 2s. सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? 11 है. 1s to 2s2 2p6 3s1, राइट? Yes. So if I go like this, sodium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, तो सबकी बात करेंगे तो किस सबका चेक करो. इसके वैलेंस शेल के इसमें एक इलेक्ट्रॉन, राइट? इसके वैलेंस शेल के इसमें एक इलेक्ट्रॉन. पोटेशियम के क्या आएगा आपको? 4s1. रुबिडियम 5s1. सीसियम 6s1. फ्रांशियम 7s1. इन जनरल ns1. बराबर है? तो क्लास क्या सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? s में एक इलेक्ट्रॉन. देखो सबके, हाँ या ना? हाँ. तो क्लास बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्लास कैन आई राइट जब कॉन्फ़िगर इन जनरल एज व्हाट? क्या लिख सकते हो इनका इन जनरल? ns1 लिख सकते हो ना? ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं मैं ns1, यस और नो? आउटर कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट पार्ट लिख सकते हो ns1? Yes. नहीं समझा या समझा पहले हुआ था? समझा. ओके, तो दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1. मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ग्रुप 1 की, राइट? ओके, प्लस टेल मी लिथियम का वैलेंसी. लिथियम के वैलेंस में लिथियम का एटम कितना है? 3 है, राइट? तो 2, 1. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑफ लिथियम? 3. 1, right? 1. So by losing that electron, lithium can become Li plus, right? सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है. 2, 8, 1. By losing that electron, sodium can become Na plus. बराबर है? Potassium Yes. can lose 1 electron. Each element here can lose 1 electron and can have which charge? +1 charge. Agree? Yes. They have same. Okay, that charge is called as, you will learn one chapter called as redox reaction. आपने start किया redox reaction? Yes, sir. Okay, तो charge is called as what? Oxidation number, right? तो लिथियम में ऑक्सीडेशन नंबर +1. सोडियम all have oxidation state कितना है? सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इन केस में? ग्रुप 1 में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1. +1. Because all will lose only 1 electron to complete their octet. Agree? Yes. Okay. So class, same oxidation state, similar electronic configuration. Okay. So because of all these things, what will happen? They will show similar. क्या? Most of these elements show similar. Okay. Chemical Properties. properties, right? And these properties are called as what? Periodic properties. क्या बोलते हैं उनको? Periodic properties. Plus, what are properties similar in group 1? Okay, let me explain you just in short. All these elements are metals. ये सबके सब क्या है? Metals, right? Metals. Number 2, all are highly reactive. सबके सब क्या है? Highly reactive. Okay. Number 3,
all lose one electron and achieve oxygen state +1. Okay, all react with oxygen very fast, all react with water very fast. So class, this property I want to learn in separate chapter, but class what I want to tell you, मुझे आपको क्या बताना है कि इन सब एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, राइट? तो सेम फैशन से सब रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, एग्री? Yes. So these properties are called as what? Periodic property, or we can say periodicity. तो plus similarly group 2 के एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, राइट? ग्रुप 2 का, क्लास ग्रुप 13 के 14 के, फिर तो हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी मोर एंड लेस क्या, सिमिलर, राइट? मोर और लेस सेम, सिमिलर बेटर वर्ड होगा, राइट? एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर होगा, राइट? सो वी कॉल दिस फिनोमेना एज व्हाट? Periodicity. So class, if I ask you define periodicity, anybody would like to try periodicity? आप ट्राई करो, रॉन्ग होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता. Elements having same chemical properties. हाँ चलेगा. तो क्लास मुझे बताओ, हाइड्रोजन के नीचे ही Na+ सोडियम, लिथियम के नीचे ही सोडियम आ रहा है, सोडियम के नीचे ही पोटेशियम आ रहा है, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम आ रहा है. तो क्लास वो एलिमेंट एकदम पर्टिकुलर इंटरवल क्या होता है, क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, राइट? पूरा रिपीट हो रहा है. सोडियम के एग्जैक्टली नीचे लिथियम के एग्जैक्टली नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीसियम, उसके नीचे फ्रांशियम. तो व्हाट इज हैपनिंग, एलिमेंट्स आर रिकरिंग समझता है, वापस सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट? So this is called as the periodicity. So the definition of periodicity is the periodic reoccurrence. Plus periodic का मतलब समझता है, what is my periodic in English? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, बराबर ना, periodic reoccurrence, बराबर ना, of elements having क्या, सिमिलर Chemical properties. हाँ, प्रॉपर्टीज लिखा तो भी चलेगा, केमिकल ही रहेगा, प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर Interval of time. अगर टाइम तो नहीं चाहिए, रेगुलर इंटरवल, राइट? इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, Periodicity. periodicity. तो क्लास मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ लिथियम के बाद क्या, उसके लिथियम के नीचे कौन, लिथियम के बाद क्या, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक देखो, लिथियम हो गया, सोडियम, उसके बाद कौन आ रहा है, पोटेशियम, बाद में रुबिडियम. तो क्लास क्या हो रहा है, एक हम लोग ऐसे ऐसे देखो, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट, अक्रॉस द पीरियड ऐसे जाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे एक पूरा पीरियड कंप्लीट करेंगे तो दूसरे पीरियड में जो एलिमेंट वापस उसके नीचे आएगा, राइट? तो क्या हो रहा है, वो एक इंटरवल के वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट? Yes. That regular reoccurrence of the elements after, sorry, that regular reoccurrence of element is called as a periodicity. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल चीजें चैप्टर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव में ये सब चीजें आपको बहुत सारे चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगा. तो क्लास हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस. पहला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस. प्लस इसके अभी एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर आई विल बेसिक डेफिनेशन. द एटॉमिक रेडियस का सबसे बेसिक डेफिनेशन है क्लास, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल व्हाट, न्यूक्लियस, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, राइट? तो हर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एवरीवन नोज दैट. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. क्लास लेट मी टॉक अबाउट एटम ऑफ सोडियम. मैं सोडियम की बात कर रहा हूं. एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11. So 2,8,1. Plus sodium is present in which period? Check करो. Sodium is in the third period, right? So tell me how many shells in sodium? देखो sodium दिख रहा है आपको? Sodium in third period. 3 shells. So if I draw 3 shells in sodium, nucleus at the center. The first shell, sorry. First shell, oh no. Wrong. Third. Okay. The first shell, second shell, and third shell. अब क्या 3 shells है, बराबर है? Okay.
प्लस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, Two. बराबर ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स, गुड। सेकेंड शेल हैज 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स। And third shell has 1. 1 electron. So class, the basic definition of atomic radius or atomic size is the distance between center of nucleus and To its valence outermost electron. shell. Outermost shell. That distance is called as what? Atomic Radius. Okay. So class, अगर radius ज्यादा होगा तो atom का size क्या होगा? ज्यादा होगा ना? तो size of atom is expression radius. Class, अगर radius bigger तो class, what is size of atom? Okay, what is volume of atom as formula? Volume of atom as formula. Volume of, say atom is spherical in shape, right? तो volume is formula 4/3 pi r cube. प्लस उसमें सब चीजें कांस्टेंट एक्सेप्ट r 4/3 pi, ये सब कांस्टेंट, राइट? तो प्लस जैसे जैसे क्या चेंज होगा बताओ? रेडियस चेंज होगा, आइटम का साइज क्या होगा? रेडियस अगर बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ आइटम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आइटम का साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एग्री करते हैं आप इससे? Yes. अगर आइटम का रेडियस, जिस आइटम का रेडियस बढ़ा उसका साइज बढ़ा, एग्री? यस और Yes, नो? sir. हाँ। Yes. So class, atomic radius, the basic definition of atomic radius is the distance between center of nucleus and valence shell, right? The distance between center of nucleus and valence shell is called as what? Atomic Atomic radius. radius. Okay. ठीक है, आपको ये समझा atomic radius क्या होता है? Yes, sir. तो क्लास, एटम कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होता, तो क्लास कभी कभी क्या होता है? लेट मी टॉक अबाउट द क्लोरीन मॉल आइटम। सर क्लास, हाउ क्लोरीन एग्जिस्ट इन नेचर? क्लोरीन कैसा होता है नेचर में? बताओ मुझे। हाउ वी राइट क्लोरीन? वी राइट क्लोरीन एज Cl2, बराबर ना? क्लोरीन को कैसे लिखते हैं हम लोग? Cl2 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 2,8, बोलिए 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? 7 इलेक्ट्रॉन से, बराबर है? ओके। तो क्लास, क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1. 1। तो क्लास, इफ आई शो द क्लोरीन आइटम, इफ आई शो क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन आइटम, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, बराबर है? 1. दिस इज 1 क्लोरीन आइटम। आई टेक 1 मोर क्लोरीन आइटम। दोनों में क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देखो, ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्लास, इफ दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन? दोनों का क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? Complete. कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? Share शेयर किया. किया, राइट? बिकॉज ऑफ शेयरिंग, क्लास, नाउ दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एटम, इसका भी और इसका भी, दोनों एटम का प्रॉपर्टी, राइट? इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी। सो क्लास, when two atoms share the electron and form bond, class, we call that bond as which bond? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग उसको जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं? Covalent bond. वेरी गुड। क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लास, यहाँ पे 2 क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? तो क्लास, Yes. सपोज दिस इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट क्लोरीन, इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस सेकंड क्लोरीन, एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 क्लोरीन आइटम्स, दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ मैंने? क्लब, सपोज द डिस्टेंस इज AB। कितना डिस्टेंस है वो? AB. AB। तो बस इतना डिटेलिंग आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, 11th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हो आप तो, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडबल नीट एंड दिस थिंग्स आर मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस AB है, राइट? Yes. जो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? Covalent bond. दोनों भी एटम सेम होने चाहिए, राइट? कंडीशन देखो क्या क्या, दोनों एटम सेम होने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहिए, कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड। Covalent bond. आफ्टर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, अगर हम दो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को ज्वाइन करके डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस AB, एंड डिवाइड द डिस्टेंस बाय 2, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो क्लास, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Covalent radius. तो कोवैलेंट रेडियस किसके लिए फाइंड करते हैं? बोलो, किसके लिए फाइंड करते हैं? कोवैलेंट रेडियस उस एटम के लिए फाइंड करते हैं जो क्या बनाता है? सेम एटम के साथ क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत से एग्जांपल दे सकता हूं इसके में। क्लास H-H, क्लास कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट, राइट? वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, H-H बॉन्ड। बाद में Cl-Cl बॉन्ड अभी देखा हम लोगों ने, N ट्रिपल बॉन्ड है, मालूम है आपको? क्लास N ट्रिपल बॉन्ड क्यों, बताओ मुझे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7, राइट? 2,
5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग? 5. 5 राइट, 2,5 राइट। कितने कम पड़ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए? 3. 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 बराबर है। दूसरा नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन राइट। एक सॉरी कलर दूसरा लेते हैं हम लोग। आई थिंक यू लर्न ऑल दिस इन 10th स्टैंडर्ड, पढ़ा था। 2 3 4 5 क्लास। अभी इलेक्ट्रॉन मुझे तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर्ड है वो किसके है? दोनों के है ना, Yes, sir. तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास भी शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, एग्री हाँ या ना? हाँ. प्लस कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ यहाँ पे? 3 पेयर ना, तो 3, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या बनेगा? 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हैं आपको? यस और नो? नहीं तो नहीं बोला Yes. नहीं। Yes. तो प्लस अगर हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करेंगे, दोनों का न्यूक्लियस का सेंटर अगर ज्वाइन करेंगे हम लोग, और क्लास वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्लास क्या बोलेंगे डिस्टेंस को हम लोग? कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है? हाँ. हाँ तो क्लास सर। तो क्लास फिजिकली O2 होता है। क्लास O2 कैसे होगा बताओ मुझे, आप ट्राई करोगे? O2 कैसे बनेगा? ऑक्सीजन एटम में कितना है? 8 है राइट। 8 मतलब 2 एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6. 2,6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। कितने जरूरत है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? और 2. 2 2. प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। सर, हाँ बोलो। सर आपने जो फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम ऑफ एटम का, उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा सर? कौन सा वाला फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ नेक्स्ट ईयर आपको पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। हमें एटम का रेडियस फाइंड करना पड़ता है, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर आपको लगेगा आएगा, ठीक है? पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ओके. ठीक है? सॉरी इसको मैं चेंज करते हैं, प्लस ये दूसरा राइट। ये 2 बराबर है। सिमिलर दूसरे ऑक्सीजन गैस कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन राइट वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 एंड 6 बराबर ना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया राइट ऑक्सीजन ने। तो क्लास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो, एक पेयर से क्या बनता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 पेयर से क्या बनेगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड ना, यस. यस और नो? तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O बनेगा राइट। आपको समझा ये? यस सर. आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट हुआ है? केमिकल बॉन्डिंग नो. नहीं, तो वहाँ पे आपको ये समझेगा, नो प्रॉब्लम। तो प्लस O डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन O2 बन गया। अब मुझे इतना ही बताना है, अगर 2 सेम एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है लाइक हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है लाइक नाइट्रोजन, या फिर डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, वॉट एवर, अगर 2 सेम एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो उन 2 एटम के न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करके जो डिस्टेंस आता है, उसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तो क्लास उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस. रेडियस। इज इट सिंपल? यस. But let's call as a covalent radius. पक्का? प्लस सेकेंड रेडियस हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्लास मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है। अभी ये थोड़ा ध्यान देके सुनना केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली। क्लास क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 राइट। तो क्लोरीन ने क्या Yes. किया? दूसरे क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया शेयर राइट। किया. अभी क्लोरीन के दोनों क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. 8 ना, 1. 8 3. 8। देखो मैं वापस बताता हूँ, इस क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इस क्लोरीन के वैलेंस में 7. 7 थे राइट। देखो मैं 7 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ यहाँ पे क्लोरीन के 7, और आई विल शो ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स। पहला देखो 1 2 3 4 5 6 राइट। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 7वां दिख रहा है आपको? क्लास क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो आंसर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्लास फिर दूसरा क्लोन आएगा, बोलेगा हम लोग शेयर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लास अभी मुझे बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में, क्लास वो किसका प्रॉपर्टी है? एक किसी एक क्लोरीन का, दोनों का? दोनों का है. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? दिस इज शेयर्ड पेयर। कैसा इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड पेयर है ना। शेयर. ये समझा आपको?
तो ये कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में, राइट? ओके, माय क्वेश्चन इज, क्या अभी दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या दोनों के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है? यस। इस क्लोरीन के पास और इस क्लोरीन के पास, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। क्या अभी उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या नहीं करना है? हो गया या करना बाकी है अभी? हो गया है। हो गया। अभी क्लास व्हाट आई डू नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली। क्लास ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में मैं लेके आता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। तो माय क्वेश्चन इज, मैं इसको जो हाईलाइट कर रहा हूँ मुझे बताओ आप। मैं इसका नाम मिटा देता हूँ क्लास। ये क्लोरीन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Cl, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी ब्लू कलर से, और दूसरा क्लोरीन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे Cl, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। ओके क्लास, ये दो क्लोरीन, ये दिख रहा है आपको? ये दो क्लोरीन दिख रहा है आपको? क्या वो हाँ। आपस में बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? क्या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नहीं करेंगे? सिर्फ बॉन्ड बाद में? नहीं करेंगे, वेरी गुड। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्योंकि उन लोग का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वेरी गुड, पहले इसका से। ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? हाँ। उसने उसके बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट किया, इसने भी किसी अपने बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट? तो दोनों को बिल्कुल जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, उनका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, राइट? हाँ। प्लस एक चीज होगा, जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, राइट? ये क्लोरीन का, ये मतलब ये वाला पहला मैं नंबर 1 देता हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2 देखता हूँ, Cl1 Cl2 जब पास आएंगे तो क्लास न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ या ना? तो क्लास प्लस यस। प्लस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? ट्रिपल। रिपेल करेगा। हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यस सील सर। पहले इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? ट्रिपल। रिपेल करेंगे। पर क्लास इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? क्लोरीन वन का न्यूक्लियस दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। और दूसरा क्लोरीन का न्यूक्लियस पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। तो क्लास दोनों फोर्स है, कौन सा? अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। रिपल्शन भी है। प्लस एक टाइम ऐसा है दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, राइट? जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्शन है, राइट? प्लस उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है अपने यस। केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। नाम सुना है? नहीं। ठीक है, वो भी एक चैप्टर है आपको क्लास, चैप्टर के वो चैप्टर। केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बैलेंस हो गया, जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन है। पर क्लास जो भी हो जाए बॉन्ड तो नहीं बनेगा, राइट? दोनों के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करने वाले, आपको इतना एग्री करते हो आप? यस। क्यों नहीं करेंगे? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो क्लास यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप रहेगा, दिख रहा है आपको? बीच में गैप रहेगा थोड़ा सा। हाँ, तो क्लास ये हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं जब सब फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे? बैलेंस हो रहा है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। तो क्लास इस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ए बी। दिख रहा है आपको डिस्टेंस ए बी? क्लास दिस यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट ना क्लास। अगर आई एम टेलिंग यू, अगर आप जेडबलई के लिए, आई होप सब लोग को इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना है, जेडबल नीट क्या ऐसा एज्यूम करके सिखाऊं मैं? यस सर। Yes, sir. तो क्लास हाँ, अगर आपको देखो कैसा होता है, अगर आपको अच्छा लगे सिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो क्लास का आपको कुछ फायदा नहीं होगा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और थोड़ा सा टेंशन आएगा। पर वो चीजें एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे के टॉपिक इजी होते जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। सर ये सब एनसीईआरटी का टॉपिक है क्या? एवरीथिंग एनसीईआरटी, मैं आपको एनसीईआरटी के साथ सिखा रहा हूँ। ये अपने टेक्स्ट बुक में भी है, पर अपने टेक्स्ट बुक में बिल्कुल डिटेलिंग नहीं है उसका। इफ यू सी द, देखो इफ यू सी द लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक, जो लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ, दैट अपना टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक बिफोर चेंजिंग सिलेबस। पर अभी जो सिलेबस चेंज हुआ लास्ट ईयर, वन ऑफ द वर्स्ट टेक्स्ट बुक, अगर सबसे खराब टेक्स्ट बुक कोई है जेडबल नीट के लिए, अपना महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है। पूरा रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, तो एवरीथिंग सर एनसीईआरटी भी रेफर करना चाहिए ना? करना ही चाहिए। जिनको जेडबल नीट करना है उनको एनसीईआरटी करना ही करना है, कंपलसरी। और इफ यू सी, मैं आपको जितना चैप्टर सिखा रहा हूँ, हम लोग कंपलसरी एनसीईआरटी को साथ में रिफर कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। ओके, तो सर अगर कोई कंसेप्ट लिखना है तो फिर वो लिखते जाना डोंट वरी, मैं आपको इसका नोट्स नोटबुक में। भेजता हूँ, पूरा नोट्स भेजता हूँ मैं आपको अभी के अभी। एंड सर आपने बोला था ना एक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक वीडियो था, वीडियो, वो हाँ वो मिला नहीं अभी। मैं आप तो यूट्यूब का बता रहे थे ना? मैं सर को लिंक भेजता हूँ, और आपको इसका इस चैप्टर का नोट्स भी भेजता हूँ पूरा प्रॉपर। हाँ ओके सर। ओके। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, एल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? हाँ ठीक है, एल नहीं लिखा था मैं, ए बी। क्लास ये डिस्टेंस ए बी आपको दिख रहा है? डिस्टेंस ए बी, यस। ओके। बीच में गैप है, राइट? बॉन्ड नहीं बन रहा ना यहाँ पे, या बन रहा है? नहीं नहीं बन रहा बन है। रहा।
क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश है, दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आपको मीनिंग समझा? जब दोनों क्लोरीन के बीच का जो अट्रैक्शन रिपल्शन सब परफेक्टली क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। जितना अट्रैक्शन एक्जेक्टली उतना रिपल्शन है, बराबर है? तो क्लास इफ आई डिवाइड द डिस्टेंस बाय 2, क्लास दैट रेडियस इज कॉल्ड एज द वैन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट डर वॉल रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? Van der Waals radius. Class, I will give one more example, which is more important. Class, tell me neon atom. Neon. Everyone know neon atom? Yes. Atomic number is 10. 2, 8, right? How many electrons in valence shell of neon? 10. Sorry, I'm really sorry. कितना है? 8 है, right? Yes. क्या neon को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नहीं करना है? या ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है neon का? Complete है. Class, what is octet means? 8 electrons in last shell, right? That is called as octet. और क्लास हर एक एटम का क्या इच्छा होता है? उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट का वो सपना होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, राइट? तो नियन के ऑलरेडी ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, बराबर है? Yes. ओके, तो वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दीस आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ नियॉन। तो लेट्स से इफ अदर नियॉन कम्स नियर दिस नियॉन, कोई दूसरा नियॉन करने इसके बाजू में आता है, क्लास क्या दोनों बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बताओ मुझे, क्या दो नियॉन आइटम के बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे? आप वो भी रीजन दो। दोनों भी नियॉन के आइटम है, एग्जैक्टली सेम आइटम। ये नियॉन है और ये दूसरा नियॉन है। पहली बात, क्या दोनों बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? प्लस आइटम बॉन्ड कब बनाता है? अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ही बनाता है, कंप्लीट करने के लिए, राइट? एवरीवन, मैं क्या बोल रहा समझ रहा आपको? एटम्स बॉन्ड तभी बनाते हैं अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश में बॉन्ड बनाते हैं। वी हैव सेपरेट चैप्टर फॉर दैट, ब्यूटीफुल चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। पर फॉर टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि कोई भी एटम बॉन्ड तभी बनाएगा अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा। तो क्लास क्या दोनों भी नियॉन, दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है नहीं करना है? नहीं करना है. नहीं करना, दोनों का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। एग्री? तो क्लास Yes, sir. जब दोनों नियॉन पास में आएंगे तो क्लास क्या होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोलते जाओ, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, अट्रैक्शन, राइट? Attraction. तो व्हेन ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस, जितना अट्रैक्शन एक्जेक्टली उतना अगर उतना रिपल्शन है, क्लास क्या हो गया? विच कंडीशन? इक्विलिब्रियम, राइट? तो सपोज दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन एट व्हिच attraction and repulsion is perfectly balanced between both the neon a distance AB. If I divide the distance by what? 2, मैं इस डिस्टेंस को कितने से डिवाइड करता हूँ? 2 से। क्लास एनीबॉडी गेसेस उसको क्या बोलना चाहिए आपको लगता है? क्या बोलना चाहिए आपको इसको? Covalent radius. नहीं बच्चा, क्या पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है? No, नहीं sir. नहीं बन रहा. क्लास जब बॉन्ड नहीं बनता, क्लास ऊपर भी देखो, ये Cl यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो बहुत केयरफुल, देखो बहुत ज्यादा केयरफुली, मैं यहाँ पे अभी कोई कलर अलग यूज करना पड़ेगा मुझे, लेट मी चेक टेक, चलो मैं I'll make it very clear, don't worry. पर्पल कलर लेता हूँ मैं। प्लस ये देखो, ये मैं जो पर्पल कलर से मैं ड्रॉ किया, राइट? एबीडी से आप डिस्टेंस एबी पर्पल Yes. कलर से दिख रहा है आपको? हाँ। अब माय क्वेश्चन इज, क्या यहाँ जो डिस्टेंस लिया है, क्या दो एटम के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे या नहीं है? यहाँ पे एबी है bond. बॉन्ड है, तो उस डिस्टेंस को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या बोलूंगा उनको मैं? कोवैलेंट रेडियस, बराबर है? क्या बोलूंगा? Covalent radius. रेडियस। हाँ, तो क्लास तो Cl और मैं Cl और Cl जो एक मॉलिक्यूल में दो आइटम है, इसको लूंगा, तो उनके बीच में जो उनका जो रेडियस होगा, मैं बोलूंगा कोवैलेंट रेडियस। पर क्लास में दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, Cl2 Cl2, बराबर है? ये क्लोरीन, यहाँ पे दो आइटम है, यहाँ पे दो आइटम है। क्लास अभी मुझे होता है जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है, दिख रहा है आपको रेड वाला? Yes. क्या है, दो आइटम के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है? No. नहीं बन रहा। जब बॉन्ड नहीं बनता और जब दोनों एटम के बीच का कौन सा फोर्स बैलेंस होता है? अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स जब बैलेंस होता है, तो इफ यू डिवाइड डिस्टेंस बाय 2, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Van der Waals वैन डर radius. रेडियस। तो क्लास यहाँ पे ये भी रेडियस कौन सा होगा? वैन डर वाल्स रेडियस। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो जब बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, if two atoms are forming covalent bond, the distance between two nuclei divided by 2 is covalent radius, right? But if two atoms are not forming any bond, class don't see entire Cl2 here, पूरा Cl2 मत देखो, इस केस में आप Cl1 and Cl2 दोनों को ही देखो। क्लास में क्वेश्चन इज, अगर आप इन दो आइटम की बात कर रहे हो, ये दो की, इसकी और इसकी, तो क्लास क्या ये दोनों आइटम बॉन्ड बना रहे हैं आपस में? ये दो आइटम बॉन्ड बना रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया, देखो ये और ये बॉन्ड बना रहे नहीं बना रहे?
नहीं बना तो अगर बॉन्ड नहीं बना रहे तो उनके डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा उनका वैन डेर वाल रेडियस क्या होगा वैन डेर वाल रेडियस Radius. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू Yes, sir. ओके तो क्लास हमने कौन सा रेडियस देखा कोवन रेडियस दूसरा कौन सा देखा वैन डेर वाल रेडियस। ओके क्लास नेक्स्ट थिंग अगर हमारे पास सोडियम है क्लास सोडियम सिंगल सोडियम एटम है राइट सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11 है ओके आपका रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट हो गया ना यस सर चलो। 2,8,1 क्लास अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्लास क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को आप लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ना यस। तो सोडियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 8 हो जाएंगे क्लास क्या हो जाएगा वो स्टेबल। स्टेबल हो जाएगा राइट तो Na बिकम Na+. तो क्लास टेल मी व्हेन एनी एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज व्हाट वी कॉल दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कटायन क्या बोलते हैं उसको कैटायन। कटायन तो क्लास डू यू एग्री दैट सोडियम एटम एंड सोडियम कटायन दोनों अलग अलग चीज है क्या डिफरेंस है दोनों में Na+ के पास Na से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है कम है। कम है राइट तो क्लास अगर आप क्या देखोगे न्यूक्लियस क्लास अब इसके पास कितने शेल्स 2 ही शेल्स है ना बराबर इसके पास आया ना हाँ। क्लास अगर आप क्या करोगे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के डिस्टेंस देखोगे किसके कौन से केस में Na+ के लिए तो क्लास उसको बोलेंगे लोग कटायनिक रेडियस क्या बोलते हैं इसको कैटायनिक रेडियस। मतलब कटायन के रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग कटायनिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं फाइंड कैसे करते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस को काउंट फाइंड करो राइट दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट कैटायनिक रेडियस। रेडियस ओके क्लास नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं मेरे पास क्लोरीन है क्लास क्लोरीन एटम नंबर 17 है राइट 2,8,7 क्लास उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है बराबर है तो क्लोरीन क्या करेगा Yes. इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा गेन करेगा बराबर ना और क्या बनेगा Cl- बराबर है अभी क्या होगा 2,8,8 क्लास को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में रिडक्शन बराबर है यस। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किया तो क्लास अभी क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हाँ या ना हाँ। तो क्लास अभी ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं एनीबॉडी अनायन। अनायन वेरी गुड तो क्लास अभी मैं क्या करता हूँ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मैं क्लास में बात कर रहा हूँ अनायन की राइट Cl की नहीं तो उसके पास टोटल 3 शेल्स है राइट देखो 2,8,8 बराबर ना तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस जो होगा वी कॉल इट रेडियस एज व्हाट अनायनिक रेडियस क्या बोलते हैं उसको अनायनिक रेडियस इज इट क्लियर बच्चों लोग यस और नो यस सर। हाँ और क्लास कटायनिक अनायनिक रेडियस को हम लोग इन जनरल बोलते हैं आयोनिक रेडियस क्या बोलते हैं इसको आयनिक रेडियस। बस अगर आयनिक रेडियस जनरल टर्म है अगर कटायन होगा तो कटायनिक रेडियस अनायन होगा तो अनायनिक रेडियस इन जनरल कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग आयनिक रेडियस रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ आयन आयन मतलब कटायन होगा तो कटायनिक रेडियस अनायन होगा तो अनायनिक रेडियस आर यू क्लियर यस सर। गुड क्लास नाउ द लास्ट रेडियस इज हाँ क्लास आपको मालूम है मेटल्स मालूम है सब लोग को गिव मी एग्जांपल ऑफ Yes, मेटल्स sir. गिव मी एग्जांपल ऑफ मेटल्स कोई मेटल का नाम बताओ मुझे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो क्लास मेटल्स में कैसा होता है क्लास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 है राइट यस। 2,8,3 क्लास मेटल्स में क्या होता है मेटल्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या बनता है Al+ बनाता है 3 इलेक्ट्रॉन क्या लूज करके क्या बनाता है कटायन बनाता है राइट बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स अगला जो कटायन बना है मेटल कटायन दिस कटायंस गेट अरेंज इन क्लास में थोड़ा बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ प्लीज अगर आपको नहीं समझ रहा तो डोंट वरी ये बहुत ज्यादा है इस लेवल पे तो क्लास ये जो कटायन आपको दिख रहा है Al+3 ये एक ऐसे Yes. ये सब कटायन क्या होते हैं एक डिफरेंट पैटर्न में क्या होता है अरेंज हो जाते हैं डिफरेंट पैटर्न में क्या होता है अरेंज हो जाते हैं प्लस ऐसे बहुत सारे पैटर्न ये 3D डायमेंशनल पैटर्न होते हैं जो आपको चैप्टर सीखना है नेक्स्ट है कौन सा सॉलिड स्टेट उसके लिए ठीक है तो ये कटायन एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं क्लास कौन सा पैटर्न होता है तो नेक्स्ट ईयर सीखेंगे ठीक है फिलहाल हमें क्या रखना है कि देखिए अरेंज इन अ डेफिनाइट पैटर्न कौन कटायन बराबर है
मेटल्स में अरेंजमेंट कैसे होता है मैं बताता हूँ. कैटायंस गेट अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न. और क्लास हर एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया था बताओ मुझे. हर एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया था? 3, राइट. तो जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे तो क्लास वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी घूमते रहते हैं रैंडमली, इसलिए आपको बोला मेटल का गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. आपने सुना है मेटल का गुड कंडक्टर? Yes. बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स के पास पूरा फ्रीडम है, वो एक जगह पे नहीं, वो किधर भी घूम सकते हैं, राइट. तो दिस इज सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. आपको इस साल इसका जरूरत नहीं है, पर आपको ये समझा मेटल में कैसा अरेंजमेंट होता है. तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? मेटल कैटायन, राइट. तो मेटल कैटायंस इन अ डेफिनेट पैटर्न, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली. तो क्लास आप कोई भी दो नियरेस्ट मेटल के एटम लो, कोई भी दो लिटरली कोई भी दो जो सबसे नियरेस्ट है. क्लास ये और ये चलेगा? Yes, sir. जो सबसे नियरेस्ट है उनके सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करोगे आप. दोनों का न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करोगे, इन दोनों का न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे. सपोज ए इसका न्यूक्लियस का सेंटर, इसका न्यूक्लियस का सेंटर, डिस्टेंस ए बी को आप डिवाइड करोगे किससे? 2 से. तो क्लास दैट रेडियस इज कॉल्ड एज द मेटालिक रेडियस. क्या बोलते हैं हम उसको? Metallic radius. क्लास में एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर रहा हूँ पर क्लास हर एक चीज का डिफरेंस सिर्फ एक एक दो दो लाइन का है. मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें आपको ये बहुत इजीली समझेगा. समझा? तो क्लास इफ आई Yes, sir. गिव यू ओनली डेफिनेशंस आपको मतलब कैसे होगा, वो सिर्फ रट्टा मार के हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं कंसेप्ट. दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. तो क्लास अगर दो एटम, सेम एटम क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. केयरफुल है, मैं इसका समराइज कर रहा हूँ. दो सेम एटम क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, राइट. तो दो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को ज्वाइन करो, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, उसको 2 से डिवाइड करो. एनीबॉडी क्या बोलना चाहिए इस रेडियस को? क्या बोलना चाहिए इस रेडियस को? देख के बोलो, उस रेडियस को क्या बोलना चाहिए आपको लगता है? कोई भी दो Van एटम der Waals radius. नहीं बच्चे लोग, दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. Covalent radius. मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये बात? तो उसको क्या एक बोलना सर चाहिए उसमें आपको? बॉन्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन. हाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनता यहाँ पे बच्चा. नहीं सर, यहाँ पे नहीं, नीचे. नीचे नहीं बना रहा है, वो नहीं, वो इसलिए मेटल एक अलग नाम है ना उसका. हाँ. तो क्लास अगर समझो समझो हाइड्रोजन आपके पास. जस्ट मिनट बच्चे लोग. हेलो, सॉरी. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो एवरीवन. Yes, हेलो. sir. हाँ. तो क्लास देखो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, फर्स्ट एटम. दो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. समझो, दो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. चलो मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ. ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है. अगर हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, प्लस दोनों क्या कर रहे हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं. और कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बोलो? कोवैलेंट बॉन्ड, राइट. दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन ने. तो क्लास ये न्यूक्लियस पहले हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस दूसरा हाइड्रोजन का, राइट. ये दो न्यूक्लियस मुझे आता क्या, मुझे आता हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बोलो जल्दी हो जल्दी रहा बोलो. है. हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्लास कौन सा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज Covalent कॉल्ड bond. कोवैलेंट बॉन्ड. Covalent bond. तो जब दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उन दो एटम का सेंटर ज्वाइन करो आप. न्यूक्लियस पहले एटम का न्यूक्लियस का सेंटर और दूसरे एटम के न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करो आप. और वो ज्वाइन करके वो डिस्टेंस फाइंड करो. और डिस्टेंस समझो कितना आता है आपको? ए बी, राइट. तो डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय 2 क्या कहलाएगा? कोवैलेंट रेडियस. बराबर है? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? Covalent radius. ये समझा आपको? हाँ. ओके. क्लास अभी मैं बात करता हूँ. क्लास अभी ये कौन सा मॉलिक्यूल है? अभी मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, राइट. इसमें दो हाइड्रोजन. क्लास में और एक H2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ H2 का. सेम टू सेम दूसरा और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ H2 का. बाजू में लगता हूँ. तो क्लास माय क्वेश्चन इज, सर मैं सिर्फ दो हाइड्रोजन दिखा था जो हमें काम के. प्लस मैं दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन देखो आप, जिनको मैं शेयर करता हूँ कुछ कलर से. क्लास ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? बराबर है. और ये वाला हाइड्रोजन. क्लास में होता जो हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर ड्रॉ किया है, क्लास वो किसी और के साथ बॉन्ड बना के खुश हो गया, राइट? हाँ या ना? Yes. यस और नो? और जो नीचे ड्रॉ किया वो भी Yes. किसी और के साथ क्या बॉन्ड बना के खुश हो गया. क्या दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है नहीं करना है? नहीं करना है नहीं करना. करना? नहीं करना है. नहीं बस. करना. तो ऐसे दो आइटम जो एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? बॉन्ड नहीं बना रहे. कौन से कलर के बॉन्ड आइटम दिखा रहा है? पर्पल कलर के दिख रहा है आपको? जो एक दूसरे का बॉन्ड
बना रहे नहीं बना रहे? नहीं बना। नहीं बना रहे। अगर उनके सेंटर का न्यूक्लियस का सेंटर ज्वाइन करके, क्लास ये समझ में आ रहा है नहीं? मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझ रहा है। हाँ, ज़्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं। हाँ, तो अगर दोनों का सेंटर ज्वाइन करके अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ AB डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो बच्चों क्या होगा? उसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, उसको बोलेंगे वैन डर वाल्स रेडियस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? वैन डर वाल्स वैन डर वाल्स रेडियस। रेडियस। जब बॉन्ड नहीं बनता तो वैन डर वाल्स रेडियस, राइट? यस। बस मेटल्स में कुछ अलग ही सिचुएशन है। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में क्या होता है? हर एक मेटल एटम क्या कौन से फॉर्म में रहता है? कटायन के फॉर्म में, राइट? तो सब कटायन क्या होते हैं? मेटल के कटायन दे गेट अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न। आपको नेक्स्ट ये सब सीखना है, इस साल आपको शायद बनने का चांसेस बहुत कम है। तो ऑल मेटल एटम्स, समझो मेटल के एटम्स है जो मैंने शेयर करो, दिख रहा है आपको पर्पल कलर के, ये सब मेटल के एटम्स क्या होते हैं? एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, बराबर है? तो आपको क्या करना है? कोई भी दो आइटम लेने जो सबसे क्लोजेस्ट है, कोई भी दो। तो क्लास मैंने इन दोनों की बात की जो सबसे क्लोजेस्ट, राइट? बराबर है? उनके न्यूक्लियस का सेंटर आप ज्वाइन करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटालिक रेडियस। हाँ। तो क्लास आपको जो चाहिए आपके टेक्स्ट आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो क्लास वो सिंपली डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक रेडियस। क्लास एटॉमिक रेडियस, हाउ डिफाइन एटॉमिक रेडियस? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, बोलो। द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल वेरी गुड। द और डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। द डिस्टेंस बिटवीन The nucleus and the valence. plus don't say nucleus, distance between center of nucleus, right? Yeah, that is very important term, center of nucleus, not only nucleus, which is between center of Center nucleus of nucleus. and Valence shell. valence shell, right? Is called Atomic radius. atomic radius, ठीक है? Atomic radius है फिर atomic size. Okay, तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अभी पीरियड प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स? एटॉमिक रेडियस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो क्लास सबसे पहला फैक्टर है, तो क्लास टेल मी, लिथियम के पास कितना शेल्स है बच्चे लोग? 2 शेल्स। सोडियम के पास 3. 3 शेल। पोटेशियम के पास 4. रोबियम के पास 5. सीसियम के पास 6. 6, फ्रांशियम के पास 7. 7। तो ड्रॉ हियर, राइट? लिथियम हैज ओनली 2 शेल्स, 1 शेल एंड सेकंड शेल, राइट? उसके नीचे जो सोडियम है उसके पास कितना शेल्स है? 3. 1 2 3। उसके नीचे जो पोटेशियम है उसके पास कितना शेल्स है? 4. 1 2 3 4। उसके नीचे जो रोबियम है उसके पास कितना शेल्स है? 5. 1 2 3 4 5। तो क्लास जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल बढ़ेगा या कम होगा? अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा बढ़ेगा। तो क्लास अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो क्लास फर्स्ट फैक्टर ये समझा आपको? यस। The first factor on which atomic radius depends is number of shells. बराबर है? Everyone agree with that? Number of shells. So if number of shells increases, बोलो। आप बोलो, आप complete करो statement. If number of shells increases, somebody very simple. The distance also increases. हाँ, उसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस को? Atomic radius. हाँ, if number of shells, we are talking about atomic radius ना? If number of shells increases, atomic radius also क्या? Increases, right? Yes. ये आपको समझा? पहला पॉइंट बहुत सिंपल था। तो जितना देखो, लिथियम का सिर्फ 2 शेल्स है, सोडियम के पास 3 शेल्स है। तो क्लास अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास जा रहा है, दूर जा रहा है? बताओ मुझे। दूर जा रहा है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, एग्री? Yes sir. डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? बढ़ता बढ़ जाएगा। जाएगा। इफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। Increases. एनी क्वेश्चन ओवर हियर? आपको यहाँ पे कुछ पूछना है? No sir. पक्का? हाँ. ओके। प्लस सेकंड इफेक्ट इज nuclear charge. Now class, very important thing, nuclear charge. Try to understand. Class is nucleus, first shell, okay, draw different shells, first shell,
second shell, third shell, and suppose this is valence shell. There are 4 shells in atom. बराबर है? So now I'm drawing 2 atoms. This is one atom number 1, and let's just imagine a case ऐसा atom है नहीं हमारे पास. I'm just for understanding purpose. There is atom number 2. दोनों के 4 shells, right? दोनों के 4 shells है. इसके पास भी 4 shell है, इसके पास भी 4 shell है. Are you clear? Yes. Okay. Class, let me explain you example with example, real example. तो class, do you agree that पोटेशियम के पास भी 4 shells है और स्कैंडियम के पास भी 4 shells है? Agree? Yes. Both are present which period? 4th period, right? 4th period. तो दोनों के 4 shells है, right? पोटेशियम के पास भी 4 shells है और स्कैंडियम के पास भी कितना shells है? 4 shells है. Do you agree with that? Everyone? Yes. Okay. So class, or how to find atomic radius of potassium? Distance between center of nucleus and valence shell, बराबर है? Yes. Agree ना? Distance between center of nucleus and valence shell, that is called as Valence atomic shell. radius. So distance at center of nucleus and valence shell is called as atomic radius. So atomic radius of potassium. Okay. अब दोनों में number of shells same है, right? इसके भी 4, इसके पास भी 4 shells, इसके पास भी 4 shells, right? Yes. Plus similarly scandium has 4 shells, right? So distance between center of nucleus and valence shell, that is also what? Nothing but atomic radius for what? Scandium, बराबर है? Yes. Okay. Plus do you expect दोनों का size same होगा या अलग होगा? आपको क्या लगता है? Same होगा. तो क्लास नहीं है. मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों नहीं है. तो क्लास जो स्कैंडियम का न्यूक्लियस है ना, उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है. किससे? पोटेशियम के न्यूक्लियस से. पोटेशियम का न्यूक्लियस जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर सकता है स्कैंडियम का. आर यू गेटिंग? Yes. तो क्लास अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो क्लास क्या होगा बताओ मुझे? साइज बढ़ेगा कम होगा? अट्रैक्शन ज्यादा है. इफ न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, व्हाट विल हैपन टू साइज? विल इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज. सब एग्री करते हो इससे? Yes. So if nucleus has very high power of attraction, so it will attract valence electron more strongly toward itself. वो अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को. अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्लास शेल्स क्या होगा? कंप्रेस हो जाएंगे. एग्री? थोड़ा श्रिंक हो जाएंगे तो साइज कम होगा. एग्री करते हो आप? Yes. तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? एटॉमिक साइज. आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, यू टेल मी करेक्ट और इनकरेक्ट. एटॉमिक साइज just one, I think something wrong with the pen. Is inversely proportional to, plus we write nuclear charge, but actually word कौन सा है? Effective nuclear charge, right? Keep habit of saying effective nuclear charge. I'll explain the meaning of that also. That is also a very interesting concept. Effective nuclear चार्ज. क्लास अगर हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे ना, हार्डली 2 मिनट का काम था मुझे आज का लेक्चर आपको बताना क्या करना है. मतलब मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है. क्लास यू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है समझा तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो क्लास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट क्या करेगा? आप खुद को क्वेश्चन पूछो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, राइट? Yes. ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस थोड़ा पास आ जाएगा. अगर पास आता है तो साइज बढ़ता है कम होता है? Size decrease होगा. तो क्लास इनवर्सली का मतलब समझता है? चार्ज बढ़ा तो साइज कम होगा, राइट? Yes. तो एटॉमिक बराबर है. आर यू गेटिंग एवरीवन? तो रिपीट करो एक बार वो atomic size. बताता हूँ. आप मुझे तो यहाँ पे क्या रिलेशन लिखा है? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर Effective चार्ज. nuclear charge. इसका मतलब क्या? अगर चार्ज बढ़ा तो साइज कम होगा, राइट? Yes. क्यों होगा? चार्ज बढ़ा तो क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा. If nucleus has more power to attract electron, what will happen? What is nuclear charge means? Power of nucleus to attract electrons, right? Yes. So if nucleus attracting valence electron more strongly, if nucleus attracting electron more strongly, Size will decrease. size will decrease. That's what. Simple thing. समझा आपको? हाँ. हाँ. So atomic size is inversely proportional to effective nuclear charge. Now class question is why the term effective nuclear charge? Effective nuclear charge ये हम लोग term use क्यों कर रहे हैं? ठीक है? तो class उसके लिए next factor है स्क्रीनिंग इफेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट. अगर उसका जेडब्ल्यूई के लिए और भी बहुत डिटेलिंग है तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अगर या फिर बाद में सिखाऊंगा जब एमसीक्यूज करेंगे.
स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड ऑल बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं वो सब आपको अभी सिखाऊंगा। तो जस्ट मिनट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द पेन। स्क्रीनिंग सर वो नोट्स में आपने सब कुछ लिखा है? हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। मैं आपको पूरा प्रॉपर जो आपको सिखा रहा हूँ वो सब है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की पर क्लास इतना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ हर एक चीज नहीं मिलेगा ना आपको, कितना कितने तो नोट्स तो खत्म ही नहीं होगा। बट यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो आपको नोट्स में समझेगा मैं क्या बोल लिखा है वो, ठीक है। ओके। स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्लास लेट मी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो क्लास थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स है थर्ड पीरियड में, चेक करता हूँ, या सेकंड पीरियड में लिख सकते हैं हम लोग। चलो थर्ड पीरियड में आते हैं। ये आपको दिख रहा है या सेकंड पीरियड ले, कौन सा ले? चलो सेकंड लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड पीरियड क्लास कौन से एलिमेंट सेकंड पीरियड में? लिथियम, हाँ, नहीं नहीं, सेकंड पीरियड बच्चा, हाँ सॉरी, हाँ सेकंड में, हाँ बराबर, सॉरी। लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, वेरी गुड। बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एंड नियॉन। Very good. So I'm writing them again. I'm writing your second period. Okay. Li, Be, B, C, N, O, F, बराबर है, and N. एनी, Plus, if I write the first group, plus first group में कौन सा एलिमेंट होता है? फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, लीना की आरबीसी। सोडियम। हाँ हाँ, हाइड्रोजन तो नहीं लेते हम लोग मोस्टली। लीना की आरबीसी बराबर है ना। यस। तो दिस इज सेकंड पीरियड। तो अगर सेकंड पीरियड है तो सबका बैलेंस शेल कौन सा होगा? बैलेंस शेल विल बी सेकंड ना। सबके दो ही शेल होंगे, राइट? लिथियम से लेके यस। फ्लोरीन तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक वो एक पीरियड में क्यों है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेल सेम है, बराबर है। यस। ओके, प्लस व्हेन आई से फर्स्ट ग्रुप, तो विच आर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप? लिना की आरबीसिस फरार। तो Li, Na, K, Rb, Cs एंड Fr प्लस। देखो ये दोनों साथ में सिखाएंगे तो ही समझेगा आपको मैं क्या बता रहा आपको। लिना की आरबीसिस फरार प्लस लिथियम का एटॉमिक कितना है? 3 है, राइट? सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 एंड सो सो ऑन, 19। एंड सो ऑन। तो ये मैं आगे का नहीं लिखता। तो प्लस लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 3 प्रोटॉन है, राइट? यस। प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन है, प्लस 3। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? प्लस 3, राइट? आई डोंट से इफेक्ट ऐसे, व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस? प्लस 3 लिथियम के प्लस अच्छा 3। है। एंड हाउ मेनी शेल्स इन लिथियम? 2 शेल, बिकॉज़ इट्स प्रेजेंट इन 2। सेकंड पीरियड, राइट? बात हो रही है लिथियम की। क्लास के नीचे सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। तो उसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है बताओ मुझे? प्लस 11। प्लस 11। तो क्लास क्या लिथियम से सोडियम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। यस। होना तो चाहिए ना, आपको लग रहा है? यस। एटलीस्ट होना तो चाहिए। ठीक है, क्लास के नीचे पोटेशियम, कितना शेल्स है पोटेशियम के पास? 4 शेल्स, राइट? 1 यस। 2 3 एंड 4 शेल्स। एंड चार्ज कितना है न्यूक्लियस के ऊपर? प्लस 19। हाँ, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, बराबर है? प्लस 19, एग्री? यस। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट? तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना से। हाँ, पगला ऐसा नहीं होता। अब जैसे नीचे जाते हो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है ना। हाँ सर, बट न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है, तो क्या करना बच्चों? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे यही बताना है कि आपको दोनों इफेक्ट एक साथ सीखने पड़ेंगे, समझा? तो आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से आप क्या बोल रहे हो? साइज बढ़ना चाहिए, राइट? एग्री करते हो आप? हाँ। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या हाँ, होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना तो चाहिए। बस एक्चुअली दोनों तो नहीं हो सकता, या तो नीचे से ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा या तो कम होगा। एग्री करते हो आप? हाँ। हाँ, तो क्लास अभी यहाँ पे क्या होगा मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो क्लास ये कौन सा शेल है? वैलेंस शेल है, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन, देख ये 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से समझना। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक रेडियस, बराबर है? हाँ। ये देखो 2 मिनट के लिए यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब एटॉमिक, तो ये एटॉमिक रेडियस किसका है?
लिथियम का, बराबर है। हाँ, प्लस लिथियम के वैलेंस शेल छोड़ के अंदर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बता मुझे। एटॉमिक नंबर लिथियम इज 3, 2 कॉमा लिथियम 2 कॉमा 1, 1 राइट ना। तो वैलेंस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स के हैं? 1 दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो बस आप देख सकते हो कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, दिख रहा है आपको हाँ इलेक्ट्रॉन बीच में। हाँ, आई एक्सप्लेन यू उनका उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। प्लस सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, राइट। 2 कॉमा 2,8,1 तो क्लास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ब्लू कलर से, क्या ड्रॉ। और क्लास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, बराबर ना। 8 तो प्लस ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में के 8 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, हाँ या ना। देखो वैलेंस, हाउ यू फाइंड एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, राइट। यस तो ये दोनों, ये अब ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस है, क्या उनके बीच में, यहाँ पे बीच में देखो, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से। ये के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, किसके बीच में? वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, बराबर है। वैलेंस शेल को कौन से कलर से कलर किया मैंने? पर्पल कलर से, ठीक है। और बीच के इलेक्ट्रॉन मैंने कौन सा कलर दिखा रहा हूँ शेल्स को? रेड यहाँ पे रेड, और यहाँ पे समझो मैं ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। आर यू क्लियर? अब बात करते हैं पोटेशियम की। क्लास चलो मैं ज्यादा इसको नहीं खींचता। 2,8,8,1 बराबर ना। 2,8,8,1 तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बराबर पोटेशियम के। यस तो वो डिस्टेंस बिटवीन दैट न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी एटॉमिक रेडियस, बराबर है। प्लस वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में कितने शेल्स है? 3 शेल्स, राइट। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एग्री। यस सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 8। तो बस एक क्वेश्चन है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपीट क्या करो रिपेल करता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल रिपेल करता है, एग्री। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को यस रिपेल रिपल करता है। करता है तो बस एक बहुत सिंपल क्वेश्चन समझो, ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको यहाँ पे देखा वैलेंस शेल एलिमेंट्स का कर दिखा आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस क्या कर रहा है बच्चे लोग? अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। यस हाँ, तो क्लास वो बीच के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में है, वो उसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं ना, हाँ या ना। चलो नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। प्लस न्यूक्लियस है लड़का, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? लड़का है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? लड़की है। दोनों में सच्चा प्यार है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली फॉर एग्जाम्पल। हाँ, दोनों में सच्चा प्यार है, दोनों एक दूसरे को मिलना चाहेंगे, हाँ या ना। यस ओके। क्लास पर लड़की को 2 भाई है जो उनके प्यार के खिलाफ है, राइट। प्लस क्या कोशिश करेंगे? उनको पास आने देंगे, नहीं देंगे? नहीं देंगे प्लस वो 2 भाई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रही है। हाँ तो देर एक्टिंग एज अ शील्ड, शील्ड समझ मतलब है रुकावट, किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के लिए वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो क्लास यहाँ पे कितने लोग रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं? 2। नीचे कितने कर रहे हैं? 10। और उसके नीचे कितने कर रहे हैं? 18। तो क्लास क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वैलेंस शेल का न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? प्लस अगर लड़की के 2 भाई के जब 8 भाई होते तो 8 ने 10 भाई होते तो समझो, चाचेरा भाई, मामेरा भाई, सब पूरा परिवार बीच में आता, तो क्लास उनका मिलना और भी मुश्किल हो जाता, हाँ या ना। हाँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, किसके बीच में? वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्लास उनका काम क्या है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ाना है, कम करना? बोलो। कम करना कम करना। तो जितने इलेक्ट्रॉन बीच में बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ज्यादा कर पाएगा, कम कर पाएगा? कम जितने कर पाएगा कम कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को कम कर अट्रैक्ट कर पाएगा तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? अट्रैक्ट कम कर पाएगा तो साइज बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा साइज वेरी बढ़ेगा गुड, परफेक्ट। तो क्लास कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? एटॉमिक क्लास दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इट्सेल्फ इज कॉल्ड एज व्हिच इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट। क्या इसको?
Screening effect is shielding effect. I'll tell you, shielding effect or screening effect. Class, in some places you'll find shielding, that's why I'm telling you both the names, shielding effect या फिर screening effect. Are you clear? Yes. Okay, both are correct words. आपको जो अच्छा लगे, आपको बुक में जो दिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? शेडिंग इफेक्ट या फिर इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो क्लास क्या होता है, आप जैसे से ऊपर देखो, मुझे लिथियम से आप सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से क्या हो रहा है, सीसीएम. तो क्लास बीच में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है. हाँ. क्लास बीच में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है. हाँ. क्लास बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड पैदा करेंगे क्या, Between nucleus and the valence shell. इलेक्ट्रॉन. और क्लास उससे क्या होगा, जितना The attraction will be less. हाँ, तो भले चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, देखो मतलब भले न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, उस चार्ज को क्या, उस अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, Less. कम कर रहा है, लेस कर रहा है. राइट, आर यू क्लियर? हाँ. हाँ. तो इसलिए हम लोग कभी भी न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यू अंडरस्टैंड व्हाई इफेक्टिव वर्ड? Yes. बुक में न्यूक्लियर चार्ज लिखा है क्लास. तो यहाँ पे देखो, आप बोलोगे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज +3 है, यहाँ पे 19 है, तो क्लास ये न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो क्लास यहाँ पे इसका इफेक्ट बहुत कम कर रहे हैं. कौन? ये 3 शेल. भले उसका चार्ज बहुत ज्यादा है, +19 है, पर उस चार्ज का इफेक्ट ये बीच के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. So that effect is called as what? Effective nuclear charge. charge. कौन कम कर रहा है? Shielding effect या फिर screening Electrons. effect. So class, if I make a statement, atomic radius प्लस 11 स्टैंडर्ड में क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, क्या बढ़ता है या कम, आपको इतना बताना चाहिए, शायद बढ़ रहा है कम हो रहा है. क्लास वो तो हम लोग 2 मिनट में रट्टा मार के समझ लेंगे, समझा? Yes, sir. तो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लास. सर आप जो 4th चैप्टर के एमसीक्यूज दिए थे ना, वो कहाँ से लाए थे वो एमसीक्यूज? कौन से बुक से? वो इसका है, मतलब एक मिनट मुझे दिशा पब्लिकेशन का, नेट पे अवेलेबल है वो. ओके सर. अपने क्लास के नोट्स में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ज्यादा इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस. सर बहुत ज्यादा नहीं है, एमसीक्यूज ज्यादा नहीं है. ठीक है, थ्योरेटिकल काफी. आपको एमसीक्यू का अलग दूसरा बुकलेट मिलेगा क्लासेस से, दूसरा बुकलेट है स्पेशली फॉर एमसीक्यूज बाद में. ठीक है. हाँ, मुझे तो ये करेक्ट है, ये आपको लग रहा है बराबर है? एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शील्डिंग इफेक्ट. यस. क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे ज्यादा. हाँ ठीक है, अगर बीच में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता. राइट, अगर ज्यादा से अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा. क्लास यहाँ पे 2 रीजन है, एक तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, तो उससे साइज बढ़ना चाहिए. राइट, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, उसके लिए साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. और तीसरा न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है पर उसका इफेक्ट कम हो रहा है. राइट, उसकी वजह से भी साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो बस कोई पीरियड टेबल में आप कभी भी करो, क्या करो, इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या बोलोगे आप, टॉप टू बॉटम मतलब डाउन द ग्रुप, प्रॉपर वर्डिंग. आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मैं बताता हूं आपको, आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्लास क्या क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बोलो बढ़ता है. राइट, यस. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से बीच में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है. राइट, यस. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कम होता है. और ये सब फैक्टर एक साथ काम करके क्या करते हैं, एटम का साइज बढ़ाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आर यू क्लियर? यस. प्लस टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड में, डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट? शील्डिंग इफेक्ट समझा आपको? यस सर. ओके क्लास, अभी दूसरा चीज इंपॉर्टेंट, चलो मैं आपको यहाँ पे ये बता के रुक जाऊंगा अभी. तो अगर आप बात करते हो से क्या देखा हमने, क्या देखा था, मैं लिखा भी था यहाँ पे, कहाँ पे था ये, हाँ हमने बात किया था डाउन द ग्रुप, बराबर, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है देखा आप लोगों ने. देखिए हम लेफ्ट टू राइट क्या होगा वो देखते हैं अभी हम लोग. लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब हमने कौन से एग्जांपल लिए थे लेफ्ट टू राइट के लिए, लिथियम से लेके नियॉन तक. प्लस लिथियम में कितना शेल्स है बताओ मुझे? 2. एटॉमिक नंबर कितना लिथियम का? 3. 2,1. बेरिलियम 2,2. वेरी गुड. बोरॉन 2,3. 2. कार्बन 2,4. 4. नाइट्रोजन 2,5. 2,5. ऑक्सीजन 2,6.
2,7 and 2,8. ये समझा आपको? हाँ. राइट, न्यूक्लियस लिथियम फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, राइट? व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ लिथियम +3 बराबर ना? Yes. ओके, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1? मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन कैरी -1 चार्ज बराबर है? हाँ. Plus in physics, have you studied Coulomb's law? No. Okay, I'll tell you what is Coulomb's law, because nowhere it is mentioned Coulomb's law. Just a minute, चलो. हेलो. Yes, sir. क्लास Coulomb's law क्या बोलता है? The opposite charges attract each other. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. And the force of attraction is directly proportional to the product of charges and inversely proportional distance between them. देखो ये Coulomb's law है. अट्रैक्शन कब बढ़ेगा? अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, राइट? हाँ. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज के बीच में तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा. और डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? मोर डिस्टेंस लेस अट्रैक्शन, लेस डिस्टेंस मोर अट्रैक्शन. इनवर्सली, राइट? Yes. आर स्क्वायर है. हाँ क्लास, अभी ऐसा मेंशन किधर भी नहीं. दिस इज नोवेयर इन योर टेक्स्ट बुक और इन एनी एनसीईआरटी बुक, बट दिस इज फिजिक्स बिहाइंड दिस प्रॉपर्टी. तो क्लास यहाँ देखो यहाँ पे. सो Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज का प्रोडक्ट. जितना चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और दो चार्ज में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. एग्री? तो बस व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ लिथियम +3, राइट? व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1? तो क्लास तो यहाँ पे हम लोग ये साइन, व्हाट इज दिस साइन एनीबॉडी? मॉड्यूलस. मतलब क्या होता है? वी हैव टू सी ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? Yes. हाँ. तो क्लास, तो इफ आई आस्क यू अट्रैक्शन बिटवीन लिथियम, दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इफ आई से न्यूक्लियस का चार्ज +3 है, राइट? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 है, राइट? आई डोंट से प्लस माइनस. आई न्यूक्लियस का चार्ज 3 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 है. आई टेक ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? नॉट साइन. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चार्ज +3 है ना? पेन इज नॉट वर्किंग. इसका चार्ज +3 है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 है, तो 3 × 1. अगला डिस्टेंस कितना दोगे इसमें? समझो r है, ठीक है? तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर ना? वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Yes. क्लास के ओके क्लास, लिथियम के कोर वैलेंस शेल के ओके अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. +3. नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हाँ, प्रोवाइड हाँ. करेंगे? विच इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, राइट? Shielding effect. गुड. वो क्या कोशिश करेंगे? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ाना है, कम करना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम करना. कम करना. गुड. ये आपको समझ गया. गुड. समझा ना आपको ये? हाँ. नाउ उसका जो बेरिलियम है, क्लास बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 4. 2,2 बराबर ना? Yes. 2,2. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है. 2,2. व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम? +4. Because it has 4 protons inside the nucleus. +4 the charge on the nucleus of beryllium. Okay, first shell contain 2 electron, second shell contain 2 electron. Now my question is, वैलेंस शेल छोड़ के जो अंदर का शेल्स है, प्लस लिथियम क्या है? अंदर के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के अंदर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. हाँ या ना? हाँ. तो दोनों के शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा. सेम रहेगा. हाँ क्लास, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम रहेगा. इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा ना? हाँ. और क्लास अभी यहाँ पे अगर आप क्या करोगे? अट्रैक्शन देखोगे बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? 4 है, राइट? और इलेक्ट्रॉन का Yes. चार्ज कितना है? 1 है, डिवाइडेड बाय r. क्लास दोनों केस में r सेम है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उतना ही है ना? तो क्लास मैं बताओ क्या हो रहा है? जैसे आगे बढ़ रहे हो क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट. क्लास अभी आगे की बात करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट की, न्यूक्लियस अगेन 2 शेल्स ओनली, बराबर है? 2 शेल्स ओनली. इसमें भी 2 ही शेल्स है. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Yes. और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बात करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स. तो क्लास क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है? इफेक्टिव चार्ज में तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है? न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है?
ना इफेक्टिव चार्ज क्यों बढ़ रहा है बताता हूं आपको, क्योंकि दोनों देखो इसका भी देखो वैलेंस शेल भूल जाओ, वैलेंस शेल छोड़ के जो शेल है यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक ही है, तो प्लस तीनों भी केस में शील्डिंग सेम ही प्रोवाइड होगा। जितना Yes. शील्डिंग फर्स्ट केस में होगा उतना शील्डिंग सेकंड केस में होगा, उतना शील्डिंग थर्ड केस में होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट चेंज हो रहा है। नहीं। और न्यूक्लियस का चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, +3 से +4 हो गया, +5 न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। हाँ, तो प्लस क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। Are you हाँ। clear? हाँ, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता कम है। होता क्यों जाता कम है। होता जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन व्हाट, सेम Constant. कांस्टेंट, बट न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली कीप्स ऑन Increasing. इंक्रीजिंग। डोंट से न्यूक्लियर चार्ज, क्या व्हाट डू यू से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Effective nuclear charge. continuously keeps on increasing, and because of that size goes on decreasing Decreasing. from left to right. Right. तो बस लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स उतने रहते हैं, राइट, नंबर ऑफ शेल्स उतने रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स उतने रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ शेल्स तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम बराबर। एक शेल Yes. देखो इन सब केस में जितना शील्डिंग ये प्रोवाइड कर रहा है पहले केस में उतना सेकंड में भी प्रोवाइड हो रहा है। क्लास वैलेंस शेल मत देखना, सिर्फ अंदर केस देखना, यहाँ पे अंदर एक ही शेल है, यहाँ पे भी एक ही शेल है, यहाँ पे एक ही शेल है, तीनों केस में आपको ये इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, शील्ड प्रोवाइड करना। तीनों केस में क्या हो रहा है, उतना शील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, हाँ या ना। और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +5 था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा, आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा, हाँ यहाँ पे भी बढ़ रहा है, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी चार्ज बढ़ा था, राइट, पोटेशियम के केस में, कहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नहीं है, हाँ डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा था, मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, पर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, राइट। तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था उसके इफेक्ट को क्या कर रहा था, शील्डिंग इफेक्ट को कम कर रहा था, राइट। Yes. भले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, वहाँ पे कम हो रहा था। ओके, तो क्लास डोंट वरी, ऑल दिस थिंग्स आई एक्सप्लेन यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल में, वापस एक बार इसको मैं रिवाइज करूंगा, आज के लिए इतना हम लोग के लिए काफी है। ओके, तो क्लास मुझे इतना बताओ, एटॉमिक साइज से कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है, मुझे बताओ। नंबर 1 नंबर ऑफ शेल्स, राइट, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, एग्री। हाँ। नंबर 2 डिपेंड्स ऑन शील्डिंग इफेक्ट, अगर Atomic. हाँ दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट, अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में अगर अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, बीच में अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे, राइट। Yes. तो उससे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली बढ़ता गया तो क्या होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट, नो डाउट शील्डिंग इफेक्ट अगर सेम रहा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया तो क्या होगा, बैलेंस Size of atom decrease हो डिक्रीज जाएगा। होगा, वेरी गुड, so that is the thing, so all these things we'll discuss next lecture, I will stop now, okay। Yes, sir.